So, yesterday we learned three topics of vaginal infection. First is vulvovaginitis in the childhood. Second one, trichomonas infection. And third one is candida. So, let's take a quick revise. So, the commonest cause in childhood is vulvovaginitis in the childhood. Mainly, it occurs due to lack of estrogen and due to some cause that hampered the vaginal pH. Sometimes it may be due to foreign body insertion. So that in childhood the patient complain of discharge, itching and painful micturition. So when any child teenager comes complain of discharge, check for foreign body insertion. If not, then mainly it is because of lack of estrogen and vaginal pH altered. So the treatment you have to give is vaginal wash that keeps the vaginal pH between 3 to 3.5. Advised to use washed proper no, innerwear. So advise them to drain or wash the innerwear into the Dettol solution, properly clean, and then they can use proper cotton clothes. Sometimes if there is a soreness is there, you can advise them to apply Evalon cream, that is the estrogen cream. Take a very small quantity, apply on the private part for 15 days. This is estrogen cream, so they cannot apply for whole lifetime. So apply for 15 days and then you can advise them whenever you have problem you can use one or twice a week. Then trichomonas, commonest. Trichomonas is commonest seen in the reproductive age group. It is mainly transmitted by the sexual intercourse. So the treatment of both the partner is very well required in trichomonas infection. Typical characteristics of trichomonas is typical yellow green frothy offensive vaginal discharge associated with itching, dysuria, dyspareunia. When you see thin yellow green frothy vaginal discharge associated with puncti or hemorrhage, strawberry cervix is the typical characteristics of trichomonas. Management of trichomonas is metronidazole 200 mg 1 TDS for 7 days or secnidazole 1 gram for 2 days or tinidazole 500 mg 1 BD for 2 days. Also always treat the partner we are usually you can treat with same medication or you can give the combi kit, fast 3 kit or the Zocon AS kit available in the market, which contains 500 mg azithromycin, 150 mg fluconazole and 2 tablets of secnidazole. Azithromycin always to be taken on empty stomach, fluconazole after meal and secnidazole after meal. So azithromycin taken before breakfast, fluconazole after lunch, secnidazole 1 tablet after dinner and 1 tablet tomorrow. Then third is candida. Candida infection is mainly associated with predisposing factors. So if there is a associated diabetes, pregnancy, patient is on long-term use of antibiotics, OC pills, on HIV treatment, obesity, they are prone to develop the candida. The typical characteristics of candida are white, curdy white vaginal discharge associated with severe itching, dyspareunia and itchiness and soreness on the vulva. When you look or examine, you find thick curdy white vaginal discharge. Vulva become red and swollen. When you do take a vaginal culture, you can find the hyphae. Management, first you have to treat the itching. So advise clotrimazole beclomethasone cream, means
Clotrimazole is antifungal, and steroid cream available in the market, Candid B orthoclobenzi cream to relieve the itching and soreness on the vulva. You can use the vaginal suppositories clotrimazole 100 milligram daily for 2 weeks or 200 milligram for 6 days. Oral preparation में 150 milligram of fluconazole state. You can use itraconazole 100 milligram 1 BD for 2 days. If it's a recurrent, then fluconazole 150 milligram alternate day for 3 days, followed by 1 tablet daily for 6 months in recurrent case. Or you can use itraconazole 100 milligram 1 BD for 1 week. In this, husband also treated same treatment, or you can use the combi kit. With all this preparation, whether it's trichomonas, whether it's candida, always use vaginal wash. Why? Because vaginal wash maintains the vaginal pH up 3 to 3.5, which improves the immunity or improves the defense mechanism of the vagina. So always use vaginal wash along with this medication. So up to this we learned yesterday 3 infection: vulvovaginitis, trichomonas and candida. Now move to the next topic, that is the atrophic vaginitis. Atrophic vaginitis mainly occurred due to estrogen deficiency. It is mainly seen in the postmenopausal group or near to the menopausal group, because mainly it occurs when there is a estrogen deficiency happens in the body. So because of atrophic vaginitis, patient have discomfort, dryness and soreness in the vulva. Patient have dyspareunia, yellowish or blood stained discharge because of there is a lack of vaginal secretion. What happens? The small capillaries break down. So patient may have blood stained discharge. So it is the typical characteristics of atrophic vaginitis. When you do the local examination, as I told you, you see the sore vulva, very like a black puncti you can see because of capillaries rupture. Treatment is improve the general health, maintain the perineal hygiene, use the very well cleaned cotton clothes, vaginal wash that keeps the vaginal pH 3.5. If associated any infection, because in postmenopausal it mainly associated with candida, because patient may have diabetic or due to low immunity they have atrophic vaginitis with candida is very common. So look for any infective origin. If it is there, treat it. It's mainly because of estrogen deficiency. So use the estrogen cream, apply on external parts for 15 days daily. This is the lifetime. So you have to advise specifically 15 days daily, followed by thrice a week, followed by twice a week, followed by once a week. So we usually advise the patient gradually decrease the dose. One Evalon cream available. Take a very small like a pea size like a chana ki size ki cream lo. Apply on external area. First 15 days daily, then gradually alternate day, then 2 times a week and then once a week they can apply. So it completes the atrophic vaginitis. So according to the age group, in childhood, vulvovaginitis mainly due to estrogen deficiency or due to foreign body. In reproductive age group, it is mainly because of trichomonas and the candida. And in postmenopausal, it is mainly because of atrophic vaginitis. One infection here I forget to mention is bacterial vaginosis, that is called BV infection. So what is the characteristics of BV infection? It is a
watery white vaginal discharge. It is called BV infection, bacterial vaginosis infection, and it is very common in pregnancy. प्रेगनेंसी में जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली बीवी इन्फेक्शन होता है. ट्रीटमेंट इज सेम, मेट्रोनिडेजोल और सेक्निडेजोल, बट दिस इज द बेसिक डिफरेंस. बीवी इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं बीवी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वजाइनोसिस इन्फेक्शन. Sometimes the patient may have mixed infection. What is that? Mixed infection means patient को ट्राइकोमोनास भी है और कैंडिडा भी है. You can't differentiate. जब आप एग्जामिन करते हो तो ग्रीनिश भी होता है और साथ में पेशेंट को करडी वाइट जैसा डिस्चार्ज भी रहता है. सो देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इन्फेक्शन. सो ऐसे केसेस भी हमें कई बार देखने को मिलते हैं. सो वी हैव टू ट्रीट मिक्स्ड इन्फेक्शन. So the protocol in treatment of mixed infection is, और they are mainly recurrent. बहुत लंबे समय से पेशेंट को ये कंप्लेन होती है. जब पेशेंट को इतने लंबे टाइम से कंप्लेन होती है तो क्या कौन सी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करोगे? सबसे पहले वजाइनल वॉश. मैंने बोला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ट्रीटमेंट पेशेंट को अभी देते हो और फिर बाद में उसका वजाइनल पीएच मीन्स लोकल हाइजीन मेंटेन नहीं होता है तो पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट एज अ रिकरेंट केस. सो व्हेन एवर यू प्रिस्क्राइब एनी ड्रग टू द पेशेंट, प्रॉपर काउंसलिंग इज मस्ट. सेकेंड, always treat husband, always treat the sexual partner, plus tell them to keep abstinence during this course treatment, because if they don't do this the vice versa infection will spread. So first is vaginal wash. Second one is सपोज आपको लगता है, आपको पता नहीं चलता है कि ये कौन सा इन्फेक्शन है. मैं सच में बोलूँ, कई बार वी डोंट नो, कि मुझे भी नहीं पता चलता है कि इनको बैक्टीरियल वजाइनोसिस है, ट्राइकोमोनास है, कैंडिडा है. तो वी यूजुअली गिव अ मिक्सचर मेडिसिन. वो देने में कुछ गलत नहीं है. सो अगर ऐसा को बहुत लंबे समय का केस है, बहुत जगह से दवाई लेके आपके पास आया है, द सीक्रेट आई एम गोइंग टू टेल यू, गिव दिस प्रिस्क्रिप्शन टू दैट पेशेंट. डेफिनेटली आई एम 100% श्योर अगर उसने फॉलो किया है तो उसको वजाइनल इन्फेक्शन उसका ट्रीट होगा ही. आपको नोट डाउन करना है तो आप बुक में नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, बिकॉज सम थिंग्स आर सीक्रेट प्रिस्क्रिप्शंस आर देयर. So that's why I had not kept here. So those who listening can write it down in your notebook. Treatment for mixed infection. First is vaginal wash, that is the V wash, that is to be used twice a day, then once a day for whole life. That is the main. Second point, capsule doxycycline 100 mg 1 BD for 14 days. कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम 1 BD फॉर 14 days. इफ पॉसिबल डॉक्सी एलबी आती है, लैक्टोबैसिलाई के साथ आती है, वही देने की. थर्ड इज टैबलेट सेक्निल फोर्ट 1 ग्राम की टैबलेट आती है, 2 देने की, एक आज एक कल. थर्ड इज टैबलेट फ्लूकोनेजोल 150 मिलीग्राम, 3 टैबलेट on alternate day. Fourth one is Cleed VL vaginal tablet. Cleed VL आती है, मैं बाद में बताती हूँ कौन सी है. Cleed VL, उसमें क्या है Cleed VL में? तो उसमें क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रीमेजोल, टिनिडेजोल सब है. एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एवरीथिंग इज देयर. सो Cleed VL vaginal tablet, 1 tablet inserted in the vagina for 6 days. Along with give vaginal probiotics. That is vaginal probiotics आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो. That is फ्लोरिवा और कॉम्बिनोम टैबलेट अवेलेबल. फ्लोरिवा और कॉम्बिनोम इसमें पीछे लिखा हुआ ही है. फ्लोरिवा और टैबलेट कॉम्बिनोम.
1 BD फॉर 15 days. अगर ये थोड़ी महंगी आती है, अगर पेशेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो यू कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब टैबलेट बी फॉल्सिन प्लस. वो बहुत सस्ती आती है और चलता है, इतना अप टू रिजल्ट नहीं आएगा, बट कई बार हमको वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये उसकी वजह मैं देती हूँ टैबलेट बी फॉल्सिन प्लस 1 BD फॉर 1 month. सो दिस इज माई आइडियल प्रिस्क्रिप्शन फॉर रिकरेंट और जो लंबे समय के जो केसेस है कि जिनको कोई भी ट्रीट नहीं कर पाता है. दिस इज माई आइडियल प्रिस्क्रिप्शन. आई एम डैम श्योर आप अपने क्लिनिक में ये यूज करके देखना, 90% पेशेंट विल नॉट come back to you or they will relieve all the symptoms. This is my clinical experience of 15 years, I am telling you. Everyone, and along with Combikit to the husband. Everyone understood the treatment of mixed vaginal infection? Or shall I repeat? ओके, नो आई एम बोल देती हूँ, मैं सब एक बोल ही देती हूँ, कुछ भी मिस हो गया हो तो देख लीजिए. ट्रीटमेंट फॉर मिक्स्ड इन्फेक्शन, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. Vaginal wash twice a day followed by once a day for whole life. Second, capsule doxycycline 100 milligram 1 BD for 14 days. Third number, tablet Secnil Fort 1 gram, 2 टैबलेट, ओनली 2 टैबलेट, एक आज एक कल लेने की. टैबलेट फ्लूकोनेजोल 150 मिलीग्राम 3 टैबलेट ऑन ऑल्टरनेट डेज. क्लीड वीएल वजाइनल टैबलेट. क्लीड वीएल क्यों स्पेसिफिक में इस पे भार दे रहे हो? बिकॉज लॉट्स ऑफ vaginal tablets available in the market, but it having beautiful combination of all things. So that's why I am prescribing the trade name of the drug, Cleed VL vaginal tablet. रोज रात को एक 6 दिन नीचे की जगह रखने की. That is for sexually active woman. अगर पेशेंट अनमैरिड है, यंग गर्ल्स है, तो उसमें ये आप नहीं दोगे तो चलेगा, नहीं देने का, वजेनल टैबलेट नहीं देने का, बाकी तो सब आप दे सकते हो. ओनली डोंट गिव द वजेनल टैबलेट टू द यंग गर्ल्स और जो अनमैरिड वुमन है उसको. सो क्लीडवियल 1 HS फॉर 6 days along with vaginal prebiotics, tablet Floriva or tablet Combinome 1 BD for 15 days. और सस्ती देनी है तो टैबलेट बी फॉल्सिन प्लस 1 BD फॉर 15 days और 1 month के लिए आप दे सकते हो टू इम्प्रूव द वजाइनल फ्लोरा. अगर सेक्सुअली एक्टिव वुमन है, ट्रीट हर हस्बैंड विथ कॉम्बिकिट, फास्ट 3 किट और जोकॉन AS किट and advise them to keep abstinence for at least 1 week. Clear everyone? The whole regimen for recurrent cases of vaginal infection, how to treat. Okay, everyone clearly understood? Okay. और मैंने बोला ना, इसमें नहीं लिखा है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस इज थीन वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज, मेनली सीन इन द प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, और उसके ट्रीटमेंट सेम मेट्रोनिडेजोल और सेक्निडेजोल 2 टैबलेट हम प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड आप दे सकते हो. ये यहाँ पे नहीं लिखा है इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा. नाउ द ल्यूकोरिया. The very misunderstanding or misinterruption between leukorrhea and the vaginal infection. The one thing you have to keep in your mind that leukorrhea and vaginal infection are the 2 different things.
बिकॉज आप देखना कि इवन प्रैक्टिस में इवन गायनिक आर टेलिंग इट हैविंग द ल्यूकोरिया, बट ल्यूकोरिया इज डिफरेंट एंड वजेनल इन्फेक्शन इज अ डिफरेंट. ल्यूकोरिया किसको बोलते हैं? इट इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज एन एक्सेसिव नॉर्मल वजेनल डिस्चार्ज. Excessive normal vaginal discharge is strictly defined as leukorrhea. Criteria for leukorrhea are excessive secretion or persistent vulval moistness, non-purulent, non-offensive, non-irritant, and never causing itching. It is mainly due to emotion, our anxiety, stress related, hormonal disturbance related discharge from the vagina is simply called as leukorrhea. It is non-offensive, non-purulent and never cause itching. So अगर कोई भी पेशेंट आपके पास इन्फेक्शन का आता है तो ये आप उसको रूल्ड आउट करो, बिकॉज एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू एग्जामिन वजाइनल एग्जामिनेशन. सो बाय हिस्ट्री यू हैव टू एलिशिएट वेदर इट इज ल्यूकोरिया है कि इन्फेक्शन है. तो कैसे आप करोगे? पहले तो उसको कलर पूछो कि कैसे कलर का डिस्चार्ज होता है. देन सेकेंड आप क्या पूछोगे हिस्ट्री में? इट इज एसोसिएटेड विथ ईचिंग और नॉट. अगर वो ईचिंग वाला है दैट मीन्स इट इज मेनली इन्फेक्शन वाला है, और अगर वो ईचिंग नहीं है तो इट इज मोर टूवर्ड्स द ल्यूकोरिया. तीसरा आप पूछो कि उसमें बास आती है, इट इज ऑफेंसिव और नॉट. बैड स्मेल आती है तो मेनली इन्फेक्टिव ओरिजिन. और उसको टाइमिंग पूछो. अगर उसको इन्फेक्शन होगा तो कांस्टेंट उसको डिस्चार्ज रहेगा, बट ल्यूकोरिया में इट इज रिलेटेड टू द टाइमिंग्स. पेशेंट कई बार बोलते हैं कि मेंसेस आने के 4-5 दिन पहले डिस्चार्ज होता है फिर नहीं होता है, तो दैट इज नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोरिया. मेंस्ट्रुएशन के मीन्स 14-15वें दिन पे होता है, मीन्स अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, देन अगेन इट्स अ नॉर्मल. सो आप इवेल्युएट करो कि वेदर इट इज इन्फेक्टिव ओरिजिन है कि नहीं है. इट इज मेनली बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सेस और इट कुड बी ड्यू टू लोकलाइज्ड सर्वाइकल और वजाइनल कॉज. तो फिजियोलॉजिकल में it is mainly occurred when estrogen level is very high. When estrogen level is very high, कब हाई होता है? In puberty, around ovulation, premenstrual and the pregnancy. So it is mainly occur in puberty, around ovulation, premenstrual and the pregnancy में. It is due to physiological hormonal changes. The discharge could be there. Cervical cause. Cervical में it is sometimes it is due to cervical ectropion और cervical erosion उसको बोलते हैं. What is cervical erosion? जो बोलते हैं ना कि चांदी पड़ी हुई है. What is that? हमें जैसे बकल म्यूकोजा माउथ में जैसे अल्सर होता है, ऐसे सर्वाइकल सर्विक्स के लीप के ऊपर म्यूकोजा में अल्सर होता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल इरोशन. कब होता है, किसको होता है सर्वाइकल इरोशन? सर्वाइकल इरोशन इज मेनली अकर फर्स्ट ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी. विटामिन डेफिशिएंसी से जैसे माउथ में अल्सर होता है ऐसे सर्विक्स में भी अल्सर होता है. इट कुड बी ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ओसिपिल्स. इट कुड बी ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉपर टी इंसर्शन. इट कुड बी ड्यू टू
prolapse of uterus. It could be due to PID, pelvic inflammatory disease. So there are lots of the reason की वजह से सर्विक्स के ऊपर अल्सर होता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल इरोजन. आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बोल देती हूँ, आज मुझे ये पूरा टॉपिक खत्म करना है, तो वो जूम की मीटिंग है वो एकदम सडन से बंद हो जाए तो आप लोग अगेन लॉग इन कर देना, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आज खत्म करना है मुझे. तो शायद ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन कर देना दूसरी बार, ठीक है. हाँ, हम थे सर्वाइकल इरोजन पे. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल इरोजन. तो मैंने बोला कि सर्वाइकल इरोजन तो बहुत सारे कॉजेस से होता है, तो पहले तो जिस कॉज से हुआ है उसको रिमूव करने का ट्राई करिए. सपोज अगर वो आपको लगता है कि इट्स मेनली बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म ओसीपिल यूज से हुआ है, तो एडवाइस टू स्टॉप दैम ओसीपिल. कॉपर टी से हुआ है तो पेशेंट को बोलिए कि कॉपर टी अभी निकाल देते हैं, फिर नहीं लगा देना, थोड़ी देर उसे हीलिंग होने देना पड़ेगा. विटामिन डेफिशिएंसी है तो हम इसमें मेनली बी फॉल्सिन प्लस देते हैं. आई एम फॉन्ड ऑफ टू गिव द बी फॉल्सिन प्लस बिकॉज उसमें पूरा बी कॉम्प्लेक्स है अलॉन्ग विथ लैक्टोबैसिलाई है. तो बी फॉल्सिन प्लस 1 TDS तक देते हैं, 1 TDS फॉर 1 मंथ, ठीक है. दूसरा वजाइनल वॉश, वी वॉश देते हैं. साथ में कोई एसोसिएटेड वजाइनल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा. एंड एक टैबलेट आती है, ल्यूपिन कंपनी की आती है, उसको बोलते हैं फाहिल. फाहिल टैबलेट टू बी इंसर्टेड इन द वजाइना फॉर 6 days और फॉर 10 days. फाहिल पैसरी आती है, ल्यूपिन कंपनी की आती है, मेनली फॉर सर्वाइकल इरोजन के लिए बनाई है. उसका कंटेंट कुछ ऐसा नहीं है, बट इट्स सम प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने बनाई है. तो उसके मैंने मेरी प्रैक्टिस में यूज किया है, अच्छे है काफी रिजल्ट. फाहिल पैसरी रोज रात को एक नीचे की जगह रखनी है, वजाइनल टैबलेट आती है. अगर इतना सब करने के बाद मैं ये सारी ट्रीटमेंट पेशेंट को 15-20 के दिन के लिए देती हूँ, फिर अगेन बुलाती हूँ. अगर अच्छा नहीं होता है देन कॉटराइजेशन, सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो. एक कॉटरी जैसा मशीन आता है, वो सिंपली क्या करता है कि कॉटराइज कर देता है वो टिश्यू को. तो वो पूरी टिश्यू जैसे बन में कैसा होता है कि वो टिश्यू बिखर जाती है और थोड़े दिनों के बाद नई टिश्यू आती है. तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज सर्वाइकल कॉटराइजेशन. बट पेशेंट को बोलने का कि वो भी रिकरेंट हो सकता है इसमें भी. सो प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द पेशेंट. सो बी फॉल्सिन प्लस ऐसा लगता है तो यू कैन गिव B12 के इंजेक्शन भी 2-3 आप दे सकते हो. That also help to resolve it. So B Fulsin plus 1 TDS for 1 month. Vaginal wash दो, साथ में इन्फेक्शन है तो वो ट्रीट करो. एंड देना है तो फाहिल पैसरीज 1 HS for 10 days is the ideal treatment for cervical erosion. नहीं अच्छा होता है तो cervical cauterization. Then vaginal cause, as we discussed, it is जो ल्यूकोरिया होता है, इट इज समटाइम्स ड्यू टू यूट्राइन प्रोलैप्स, PID, ओसिपिल यूजर्स में भी सिंपल ल्यूकोरिया हो सकता है. बट मैंने बोला ल्यूकोरिया का सिंपल क्राइटेरिया है, इट इज नॉन ऑफेंसिव, नॉन पुरुलेंट, नॉट एसोसिएटेड विथ इचिंग. तो बेसिकली ल्यूकोरिया इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ होता है, तो उसमें आपको improve the general health and hygiene, use the intimate wash which maintains the vaginal pH 3.5, remove the cause like cervical erosion है तो कॉटरी कर दीजिए, प्रोलेप्स है तो हिस्टेरेक्टोमी कर देना पड़ेगा, PID है तो ट्रीटमेंट ऑफ PID देनी पड़ेगी.
लॉन्ग टर्म ओसीपिल यूजर्स है तो स्टॉप द ओसीपिल. कॉपर्टी इंसर्शन की वजह से हो रहा है तो रिमूव द कॉपर्टी फॉर 2 to 3 months, ट्रीट देम एंड देन अगेन री इंसर्ट. So you have to treat according to the cause. So this is the leukorrhea. This is the. हाँ बोलिए. मुझे नहीं सुनाई देता है आपका बहुत पता नहीं बहुत आवाज़ ब्रेक हो के आती है आपकी आवाज़. हाँ दैट इज कॉल्ड हाँ क्रायो फ्रीजिंग बोलते हैं. जो स्किन वाले होते हैं ना वो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना वो अप्लाई करते हैं. तो वो करते हैं पर उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है. हमारी मैंने रेसिडेंसी में ये किया था बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है. सो मेरा जो मानना है तो कॉटराइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन. कि एक सिंपल कॉटरी का एक मशीन आता है तो उसमें सिंपल ओनली 5 मिनट्स की प्रोसीजर है. तो सर्विक्स पे अप्लाई कर देते हैं तो पूरा वो सर्विक्स है वो रिजुनवेट हो जाता है. उसकी जो टिश्यू है फॉल ऑफ हो जाती है और नहीं आ जाती है. तो सो इन माई प्रैक्टिस आई एम यूजिंग सर्वाइकल कॉटराइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सर्वाइकल इरोजन. पहले मेडिसिन देते हैं नहीं अच्छा होता है तो देन कॉटराइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन. We are doing under general anesthesia. Very short GA देते हैं. Because Sarti hospital means government hospital में it is done under local anesthesia. लोकल में करते हैं पर प्राइवेट में we don't do in the local. We always do in the short general anesthesia. Okay? ये कुछ नहीं है. इट इज सिंपल. हाउ यू डिफ्रेंशिएट मैंने बोला कि सिंपल आप याद रखो. थिन येलो ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज है तो ट्राइकोमोनास है. थिक कर्डी वाइट है तो कैंडिडा है. वाटरी वाइट वजाइनल डिस्चार्ज है तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस है. सब साथ में है तो मिक्स्ड इन्फेक्शन है. ल्यूकोरिया है तो इट इज़ मेनली ड्यू टू फिजियोलॉजिकल रीज़न. तो वो आपको रूल्ड आउट करना है. अभी मैंने बोला था ये सारी दवाइयाँ हैं तो उसका मैंने फोटोग्राफ्स रखा है तो यू हैव अ बेटर विजुअलाइजेशन इफेक्ट. इट इज द डॉक्सीसाइक्लिन लैक्टिक एसिड बेसिलाई कैप्सूल अवेलेबल इन द मार्केट एज द डॉक्सी 1 डॉक्सी एलबी करके अवेलेबल आती है. तो डॉक्सीसाइक्लिन विथ लैक्टो एसिड बेसिलाई आप देते हो तो इट इज़ गुड. डॉक्सीसाइक्लिन वर्क एज एंटीबायोटिक. लैक्टिक एसिड बेसिलाई आप देते हो तो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द वजाइनल pH and maintain the vaginal flora. This is the सेक्निडाजोल टैबलेट. 1 ग्राम टैबलेट आती है सेक्निल फॉर्ट करके. 2 ही देनी होती है, एक आज एक कल. पर ओनली द प्रॉब्लम विथ सेक्निडाजोल इज ऑल्सो कॉजेज द वॉमिटिंग. तो यूजुअली ऐसे फंसी पेशेंट होते हैं तो व्हेन यू प्रिस्क्राइब सेक्निल फॉर्ट ऑलवेज यूज टू प्रिस्क्राइब एसिलोकार्डी या वॉमिकाइंड MD4 साथ में दे देने का. This is the itraconazole tablet. It is the fungicidal tablet. फ्लूकोनेजोल पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि फ्लूकोनेजोल तो बहुत खा के आया हुआ होता है तो अगर आप उसी के टैबलेट लिखोगे तो पेशेंट बोलेगा ये सब तो मैं लेके आया हूँ. तो कई बार फ्लूकोनेजोल से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ऐसे केसेस में यू कैन यूज द इट्राकोनेजोल टैबलेट. सिंपल है तो 100 मिलीग्राम 1 BD फॉर 2 days. रिकरेंट है तो 100 मिलीग्राम 1 BD फॉर 7 to 10 days के लिए देते हैं. दिस इज द इट्राकोनेजोल टैबलेट. दिस इज द फ्लूकोनेजोल टैबलेट 150 मिलीग्राम. यूजुअली जो बुक में डोज है वो सिंगल टैबलेट है बट इन माई प्रैक्टिस आई एम गिविंग 3 टैबलेट्स ऑल्टरनेट डे. और रिकरेंट है तो पेशेंट को बोलने का रिपीट 1 टैबलेट एट एवरी 1 month फॉर 6 months के लिए. दिस इज द क्लिडवियल. उसका दिस इज द क्लिडवियल उसका अच्छे था. दिस इज द क्लिडवियल वजाइनल टैबलेट सी. उसमें क्लिंडामाइसिन एंटी बैक्टीरियल दैट कवर्स ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. क्लॉट्रीमेजोल, मेट्रोनिडेजोल,
along with lactic acid bacilli. So it covers everything. अगर BV है तो भी करेगा,